One kindly Santa Italia. I request Honorable Professor to say few words. Honorable Professor. Hello. Very good afternoon to everybody in this hall. This is the moment having mixed emotions. A person who has rendered a long period of services to the organization, right from it's such a stage where it required to have dedicated people to carry forward the glory of the organization. And of course, what I have come to know about Mridula ma'am, that she has been working in this school for a longer period and participating very positively, very innovatively, wherever required, wherever it was needed, that was brought into the frame and she took it forwarded for the betterment always. The routine department is a very tough department. As everybody knows, the routine department देखना बहुत कठिन काम होता है. देखने से ज़्यादा कठिन होता है उसको संभालना. देखने के तो कोई भी देख ले रूटीन डिपार्टमेंट बना दे, अरेंजमेंट लगा दे. लेकिन संभालने का मतलब है the reaction on that arrangement. If somebody has handled such reactions successfully, that only can be called a true teacher in all the senses. And she has proved herself in that way. So give a big hand for Mridula ma'am as loud as we can. And what I believe that nobody gets retired. It's simply a phase that changes. You can get retired from, but the work you have done in any of the organizations that remains forever, that never gets retired. Whether you are there in that organization or you have left the organization, but what you have done, that remains always and never let you retire from the place where you have worked. जितने साल इन्होंने काम किए हैं यहाँ पर, आज हो सकता है कि जैसे simply a term is given that completion of a particular phase, but it is very simple to tell the completion of this phase, but the completion term itself includes a longer period having so many words. How can these words be forgotten on a place where somebody has walked? तो यहाँ पे यदि इनका सेवानिवृत्ति जिसको कहते हैं यदि होता भी है, तो इस जगह से इनकी सेवानिवृत्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जिस जगह पे जिन्होंने काम किया है, यहाँ की दीवारें, यहाँ के बेंचेज, यहाँ के टेबल, यहाँ के बच्चे जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं, यहाँ के टीचर्स जो काम कर रहे हैं, निकले हैं, आगे गए, कहीं दूसरी जगह गए, मृदुला मैम विल रिमेन इन देयर मेमोरीज, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो. तो कुछ लोगों का होता है कि काम करते हैं शांति से,
बोलते नहीं हैं, उनका काम ही बोलता है। तो that kind of worker she is. Her works speak, not her voice. तो बाकी I just wish that next phase of her life should be full of enjoyment with family members, and I hope that wherever she would be will never sit idle, will certainly be getting herself involved in some activities, may not be having in form of job so called, but job does not mean only what we sense the job. Job means if whatever we are doing for the satisfaction of ourselves, that can also be a kind of job that basically may not give you in terms of money, but it may give you the things what you require at most, that is the satisfaction, and that gives you to work more. Till your service you are having compulsion to work. असली टेस्ट होता है रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट तक तो काम करना है, चाहे रो के करें, गा के करें, हंस के करें, रो के जैसे भी करें वो करना है। लेकिन आपका टेस्ट होता है जब आप रिटायर हो जाते हैं, तब आपसे उम्मीद होती है अब तो रिटायर हो गए। ये अदर सा इंप्रेशन हमारे सोसाइटी में भी है, हमारे घरों में सब जगह रहता है कि रिटायरमेंट का मतलब लोग सोचता है कि रिटायरमेंट मतलब कि ही और शी विल नॉट वर्क फर्दर। लेकिन अब ये चीजें चेंज हो गई हैं, ये पहले की बातें थी, अब ऐसा नहीं है। कई बार रिटायरमेंट के बाद लोग रिटायरमेंट मतलब जॉब से ज्यादा काम करते हैं और बढ़िया काम करते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी फैमिली के लिए और बाकी उन सबों के लिए। मेरा इनके साथ बहुत ज्यादा समय तो नहीं रहा है, लेकिन जिन लोगों ने इनके साथ लंबे समय गुजारे हैं, मुझे लगता है कि उनके पास बहुत सारी मेमोरीज होगी शेयर करने के लिए। लेकिन जो भी समय मैंने बिताया, आई कुड सिंपली अंडरस्टैंड दैट शी इज अ वेरी गुड साइलेंट वर्कर, कीप ऑन वर्किंग एंड विदाउट हैविंग एनी स्ट्रेस फ्रॉम द फेस। That kind of quality. Give a big hand for once again. I would like to wish for further enjoyment in her life in terms of work, in terms of her engagement, because I wish for the second inning of her tenure, one phase completes, the second phase starts. Thank you very much, madam. एक बार फिर से ताली बजाइए। थैंक यू सर, सही कहा आपने। और जिनको काम करने की आदत हो जाए वो कुछ न कुछ काम तो कर ही लेते हैं, अपने ऊर्जा को, अपने एनर्जी को कहीं न कहीं बहुत पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ मैं आमंत्रित करती हूँ रश्मि पाठक मैडम को। उपस्थित प्राचार्य महोदय और मेरे सभी सहकर्मी, एक परंपरा भी थोड़ी बन गई है कि प्रशस्ति पत्र का कार्य मुझे दिया जाता है और ये हमारी स्ट्रीम में विनोद सर की भी बराबर की भूमिका है। लेकिन उसके पहले मैं कुछ दो शब्द मृदुला मैम के लिए कहना चाहूंगी। पहली बात आई कि मैम इतनी कर्मठ है कि हमेशा काम में ही लगी रहती है और एक ऑरा जो होता है, शायद उस ऑरे का प्रभाव था कि परसों तक मैम के प्रशस्ति पत्र पर मैंने कुछ भी काम नहीं किया था क्योंकि मैं काम में ही व्यस्त थी। और जब यहाँ से मैं गई तो मुझे जाने लगी तो मुझे और अजीब बात हो गई थी सबके लिए। फिर मैंने सुमन सर से कहा तो इन्होंने कहा कि मैं कुछ पूछ कर मैं आपसे आपको बताऊंगा। फिर जब मैं घर गई तो मुझे लगा कि मैम ऐसा तो जोड़िए। फिर मैंने खुद मैम को लिखा कुछ पॉइंट के बारे में कि मैम आप अपने बारे में मुझे थोड़ी जानकारी दें। और कुछ समय के बाद मैंने इतने सुंदर अक्षर में अपने बारे में जो लिख के मेरे पास भेजा तो मैं बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हुई और मैं ऐसे भी की और सब मैंने मैम के बारे में कुछ लिखा। दूसरी बात हुई कि जब ये लिखा गया और मैंने विनोद सर को दिया, सर ने कहा कि कोई फोटो मैम का हमको भेजिए। मैंने अपनी गैलरी में ढूंढा, मैम की कोई फोटो मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। फोटो की जगह हर जगह एडजस्टमेंट, ब्यूटी, ये वो, यानी मैम का पूरा इनकी तस्वीर इनका कर्म है। तो एक ऐसी शिक्षिका हमारे बीच में जिनकी छवि, मैं क्या कहूँ कि कर्म ही इनकी छवि बनी हुई है। तो उसको देखते हुए भी मैंने जो कुछ पद के लिए लिखे हैं वो आपके सामने प्रस्तुत है। कर्म पथ की प्रतीक
हे कर्म पथ की पति क्या खूब सफर तय तूने की, प्रतिपल कर्मरत रहकर तूने विश्राम कभी भी ना की। जी हाँ, यह पंक्तियां आदरणीय मृदुला मैम के लिए ही है। अपनी सेवा निवृत्ति के 3 महीने बाद भी विद्यालय की सेवा में बिल्कुल अवकाश नहीं लिया। बुद्धिमती, कर्मठ, स्पष्टवादी, जुझारू, सादगीपूर्ण मुस्कान लिए चेहरा, यही आपकी छवि है। विदा और विदाई ऐसे शब्द हैं जो हमें भावुक और संवेदनशील बना देते हैं। आपके व्यक्तित्व में अनुशासन, प्रिय पिता स्वर्गीय श्री सुरेश कुमार सिन्हा पोस्टल विभाग अधिकारी के अनुशासन का तो घर और बाहर के कार्य क्षेत्र को कुशलतापूर्वक संचालित करने वाली आपकी माता की विशेषता का सुंदर समावेश है। सुप्रिंटेंडेंट के रूप में आपके पिता की पदस्थापना के कारण आपकी प्रारंभिक शिक्षा आर्य कन्या विद्यालय छपरा में हुई। आपके पिता के स्थानांतरण के कारण 7वीं कक्षा के बाद की आपकी पढ़ाई गर्दरी बाग राजकीय कन्या विद्यालय में हुई। तत्पश्चात 1981 में आपने इंटर की परीक्षा पास की। डॉक्टर नाना और मामा से प्रेरित होने के कारण आपका झुकाव मेडिकल कैरियर की ओर हुआ। आपने पहले ही प्रयास में मेडिकल की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, किंतु वांछित अंक प्राप्त नहीं होने के कारण मुजफ्फरपुर या पटना मेडिकल कॉलेज में नामांकन संभव नहीं हो सका। उस समय अपने से दूर भागलपुर मेडिकल कॉलेज में अकेली लड़की को भेजना इतना सहज और सामान्य बात नहीं थी। अतः परिस्थितिवश आपकी दिशा बदल गई। फिर आपने जीव विज्ञान विषय में जेडी वुमेन्स कॉलेज से स्नातक प्रतिष्ठा की पढ़ाई पूरी की। स्नातक के बाद आप श्री सुनील कुमार सिंह सुपरवाइजर से विवाह बंधन में बंध गए, पर आपके अध्ययन का शौक अब भी जारी रहा और आप एएन कॉलेज पटना से स्नातकोत्तर 63% अंक प्राप्त करके 3rd टॉपर रही। अपने 2 बच्चों और संयुक्त परिवार का दायित्व निभाते हुए आपने बीएड, सीटेट, पीएचडी करके अध्ययन के प्रति अपना शौक जारी रखा। मेडिकल क्षेत्र में अपना कैरियर नहीं बना पाने की कुंठा की जगह आपने शिक्षण को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर दिलो जान से शिक्षण का कार्य कर छात्रों को प्रेरित करते हुए अपने सकारात्मक व्यक्तित्व का परिचय दिया। 1989 से आपने शिक्षण व्यवसाय का एक निजी विद्यालय से सफर शुरू किया। 1993 में 6 शिक्षकों वाले डीएवी पब्लिक स्कूल बालवी में पदभार ग्रहण कर आप डीएवी शिक्षण संस्थान से जुड़ गए। पुनः 1997 से 2007 तक आपने डीएवी पब्लिक स्कूल बक्सर में अपनी सेवा दी। 2007 से आज तक आप डीएवी पब्लिक स्कूल ट्रांसपोर्ट नगर पटना में एक स्तंभ के रूप में कार्यरत हैं। विद्यालय की 7 घंटियों के समय चक्र को सभी को समायोजित करने का दायित्व आपने धैर्यपूर्वक बड़ी कुशलता से निभाया। कोरोना काल से लेकर आकस्मिक रूप से शिक्षकों के आगे जाने की स्थिति हो या विद्यालय की गतिविधियों का आयोजन, आपके सहयोग के बिना इनके पूरे होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपके घरेलू दायित्व और व्यवसाय में दक्षतापूर्वक कार्य करने की सफलता के पीछे आपके पति स्वर्गीय सुनील कुमार सिन्हा जी का बहुत बड़ा योगदान है। आपके दोनों पुत्रों ने डीएवी बागी से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ कर बिजनेस मैनेजमेंट तथा डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की। दूसरी ओर आपकी दोनों पुत्रवधू भी डॉक्टरी तथा सीएस की ऊंची डिग्री प्राप्त कर अपने अपने व्यवसाय में कार्यरत है। आज आपका पोता भी इसी विद्यालय का छात्र है। आज जिला की इस मेला में असुकृत नेत्रों और दरिद्र जैसे आपके दीर्घायु, स्वस्थ और प्रसन्न जीवन की कामना करते हैं। जीवन की इस मोड़ से आगे भी आपका जीवन सफल और बेहतरीन हो। समर्पित परिवार डीएवी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नगर अंगरवाल पटना। जैसा कि मैम ने कहा कि दिखाया करती, इसीलिए आज हम इनकी तस्वीर उतारेंगे। इनका जो कार्य है उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, हम इनको बहुत आगे देते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि सोच करके आओ, ज्यादा काम करना है, बहुत काम करना है स्कूल में, और जब थोड़ा काम मिले तो खुश हो जाए, काम हम ला सकेंगे। Hello, Reverend Principal Sir, esteemed guest of honor, Madam Kumari Murtha Sinha, my beloved colleagues, we all have gathered here for the bid education of Madam Murtha Sinha. She has rendered services to the DAV organization for more than 3 decades. It is not an easy task. She
been hardworking, systematic, scientific, accessible, and whatnot. She has also worked in the middle seat where I joined her in 2011. She was working with us, but after that she was in the services of the senior classes. She is very generous, meticulous, and very valuable. Some people are always after publicity, but I have seen her that she was never behind the publicity. She is workaholic in nature, hardworking, sincere, scientific, devoted. So we should learn a lesson from her. All her qualities can be summed up in a very simple way. In the abbreviation of Mridula, MRIDULA, I have chosen the word M for moderate, R for reasonable, I for intelligent, D for diligent, U urban, L lovable, and A affectionate and accessible. So all her qualities have been summed up in the abbreviation Mridula. I hope that she will be keeping well and she will be completing the second inning in an excellent way, as Honorable Sir has also said, a man never retires, and I hope that she will never retire. So I wish that all should give a standing ovation to her. So please all of you stand up and give her a standing ovation for the services rendered to you for the dear organization. Thank you, madam. Thank you. Have a nice day to all of you. Thank you, Master. Indeed, Mridula Madam deserves standing and shout out for her commendable career in DAV organization. I request Ashok sir to please be here because he is the one who has worked with Mridula Madam in Buxar as well. Our honorable principal sir, respected Mridula ma'am, and all my dear friends. आज मैं आप सभी के साथ एक हल्का सा चीज का जिक्र करना चाहता हूँ। ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। जब मैंने बक्सर 94 में ज्वाइन किया, उसके बाद मैडम आई और उन्होंने काफी मेहनत किया। उस समय स्कूल मुश्किल से क्लास 3-4 तक चलता था और वो स्कूल आज कहां से कहां चला गया। लेकिन उस समय से उन्होंने काफी मेहनत किया और उसके बाद आज हम लोग 30 साल का एक साथ रहा तो काफी स्मरणीय है। मैंने देखा है कि वो स्कूल के साथ साथ अपने घर को भी देखती थी, अपने बच्चों को ज्यादा ध्यान भी रखते थे और स्कूल के बच्चों के ऊपर भी ज्यादा ध्यान था। और यही वजह है कि आज उनके बच्चे एक डॉक्टर हैं और दूसरे बिजनेस में अपना नाम कर रहे हैं। तो ये सभी उनका काफी देन रहा है। ये दूर के प्रति बहुत डिवोटिव रही। मैं ऊपर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे उनका जिंदगी का फर्स्ट हाफ इतना अच्छा गुजरा है तो आगे का जो सेकेंड इनिंग है वो भी अच्छा से गुजरे और काफी बढ़िया रहे। आप दीर्घायु रहे और हर चीज को बारीकी से देखें और अपने आप पर
और साथ ही परिवार पर ध्यान देते हुए आगे की ओर अग्रसर हैं। यही मेरे भगवान से प्रार्थना है। बस, थैंक यू। थैंक यू अशोक सर। यह सांझ उषा का आंगन आलिंगन विरह मिलन का चिरहास अश्रु में आना रे इस मानव जीवन का। मैं आमंत्रित करती हूँ प्रियंका मैडम को। Good afternoon to Honorable Principal Sir. Namaste to Mridula Ma'am and to all my senior colleagues and junior colleagues. बहुत सारी बातें हो चुकी हैं मृदुला मैम के बारे में, मैं बस इतना ही कहूँगी। मृदुला मैम, जब से जाना तब से सिर्फ यही जाना, जब से जाना तब से सिर्फ यही जाना कि नाम जरूर है मृदुला, किंतु मृदु के साथ दृढ़ी और अड़ग आत्मविश्वास से ओतप्रोत है यह महिला। विद्यालय के समय सारणी को समय के साथ आते और जाते बदलाव के साथ बखूबी है संभाला। चाहे अप्रैल के शुरुआती दिन हो या हो कि नवंबर का महीना, चाहे अप्रैल के शुरुआती दिन हो या हो कि नवंबर का महीना, चुटकी बजाते हल हो जाए, चाहे बवंडर कोई भी आए। और बवंडर का मतलब होता है स्कूल में अनायास किसी शिक्षक का यहाँ से कहीं और चले जाना। बात इनकी यहाँ पर रुकती नहीं, बात इनकी यहाँ पर रुकती नहीं, क्योंकि ये तो कभी थकती ही नहीं। ओल्ड बिल्डिंग से न्यू बिल्डिंग तक किसको कहाँ है बिठाना, कौन रहेगा हॉल में और किसे है गलियारों में हाथ लगाना, इन सब की बही इन्हीं की किताबों में हुआ करती है। विद्यालय से परे एक रिश्ता है हमारा जो इन्होंने डांट डांट कर है सवारा। कहा था जब मैं माँ बनी थी, कहा था जब मैं माँ बनी थी, अब तुम सुधरोगी संवरोगी, जब संवारोगी किसी का बचपन, अपनी आदतें खुद ही सुधारोगी। और आदतों से मेरा मतलब है कुरकुरे के साथ रोटी खाना। अच्छा लगता था इनका ये कहना, अच्छा लगता था इनका ये कहना कि मान लेती हो तुम प्रियंका हम बड़ों का कहना। विदा की यह घड़ी बड़ी भावुक होती है, विदा की यह घड़ी बड़ी भावुक होती है। बस इतना ही कहूंगी, मधुदी रह गया अभी भी बहुत कुछ आपसे सीखना। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका मैडम, आपने सही कहा। और सीखना तो अनवरत प्रक्रिया, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड वी कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। एट द सेम टाइम जब लर्निंग की बात आती है तो मृदुला मैडम ये जानती है कि किसको कहाँ पे बिठाना है, जैसे प्रियंका मैडम ने कहा। लेकिन इनकी एक बहुत ही अच्छी सखी है, वो उनके लिए थोड़ा भावुक क्षण है ये, लेकिन फिर भी मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी कि कृपया वो 2 शब्द जरूर बोले। आज उनकी सबसे अजीज सबसे प्यारी दोस्त हमारे स्कूल प्रांगण से विदा हो रही है और हमारा स्कूल प्रांगण पटना में ही है और मृदुला मैडम भी पटना में ही है, तो हम लोग बहुत दूर नहीं है। तो उन्हें मैडम आप कृपया इस क्षण को यादगार बनाएं, कुछ अपना अनुभव अपने बातों को साझा करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय और मेरे प्यारे शिक्षक, अभी तो ऐसा कोई शब्द ही नहीं है कि जो उनके बारे में हम बोल सकें। बातें तो साथ में थे लेकिन बातें बहुत कम होती थी, क्योंकि वो अपने काम थे और हम अपने काम में बिजी रहते थे। और अभी तक उनका पूरा जानकारी भी हमको नहीं हो पाया है, क्योंकि हम लोग को कभी मौका ही नहीं मिलता था कि हम लोग बैठ के कभी बढ़िया से बात कर पाए। बस बात यही होती थी कि जहाँ कुछ गड़बड़ हुआ तो आपस में कुछ मैं होना शुरू हो जाता था, बस यही होता था। लेकिन अंदरूनी बातें कुछ नहीं हो पाती थी। तो आगे हम इनके बारे में क्या हम बताएं, वो मेरे पास नहीं। हम आपकी भावना को समझते हैं और क्योंकि आप दोनों ही
हम लोगों की तरह बातें करने का शायद फुर्सत निकल ही नहीं पाता है। लेकिन एक बात है, आनंददायक इस बात के लिए है कि कभी एक क्षण भी बेकार नहीं किया जीवन में। अब रिटायरमेंट में खाली बैठने का मजा ही कुछ और है। न जानने का झंझट, न सोने की जल्दी, न जानने की झंझट, न सोने की जल्दी, रख के अलार्म ताक पर अब देर तक सोने का मजा ही कुछ और है। आई इनवाइट प्रिया मिश्रा मैडम to be here to share her views and share the moments that we have witnessed with dear Mridula madam. नमस्कार सभी को। मृदुला मैम को हम लोग, जो लोग जाते हैं उनको शायद एक बार हम लोग याद करते हैं, 2 बार याद करते हैं, पर मृदुला मैम को हर साल भर में 5 बार याद करेंगे जब जब रूटीन आएगा। अभी याद करेंगे, गर्मी छुट्टी के बाद याद करेंगे। मैम की यही खासियत उनको खास बनाई कि जब जैसा डिमांड किया गया, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे कभी और कोई टीचर जा रहा है, कोई आ रहा है, उसी हिसाब से उन्होंने तुरंत नया एक रूटीन तैयार करके दे दिया है। तो 4 पंक्ति जो उनके व्यक्तित्व को सभी ने कहा है, उसी को बंद करती हूँ। अगले पड़ाव की ओर बढ़ते आपके कदम, आपके लिए खुशियों की कामना करते हम। जमीन पर दूध की घास हो और आसमान खुला, प्यार और निश्चिंतता पाए मैडम मृदुला। विद्यालय के सबसे कठिन काम को इन्होंने संभाला है। एडजस्टमेंट तथा रूटीन पर इनका ज्ञान आला है। कड़ी मेहनत, सादगी और कर्मठ है व्यक्तित्व। समन्वय और समय की पाबंदी है इनके जीवन तत्व। नए सफर में भी मिले प्यार, पूरा हो हर सपना। पूरे विद्यालय की ओर से यही है शुभकामना, यही है शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिया मैम। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन में परिपूर्ण। फिर घर में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घर। मृदुला मैडम यहाँ पर नहीं रहते हुए भी वह हमारे सामने हमेशा रहेगी। और जब भी हम लोग रूटीन की बात करेंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि लगभग हम लोग हर दिन इनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि इनके रूटीन बनाने का तरीका, इनकी एक खासियत ये है कि ये कभी भी गुस्सा नहीं होती, बेबाकी से अपनी बात कहती है और कोई भी पीछे नहीं, ऑन द फेस। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, ये इनकी बहुत ही अच्छी एक बात है कि ये जिसको जो कहना चाहती है उनके मुंह पर कहती है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी प्यारे मृदुला मैडम से कि वो कुछ कहें। Respected principal sir and my dear friends, आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने सारे कलीग्स को जो मेरे हर काम में हमारा साथ देते रहे हैं। मुझे विश्वास रहता था कि अगर मैं कॉल करके किसी भी कहीं भी जाने के लिए कह दूँ, कोई इस क्लास में चले जाते थे, भले ही बाद में वो पूछते थे कि मुझे ही क्यों नहीं, और मैं उनको बहुत ही प्यार से समझा देती हूँ और समझ भी लेते थे। कुछ लोग ज्यादा नहीं करते भी, लेकिन वो 5 मिनट के बाद फिर क्लास में मौजूद ही हो जाते हैं। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। कोई भी किसी भी शिफ्ट के टीचर कभी भी मुझे ना नहीं कर। राम शंकर सर याद होगा या मनीष सर, जो काफी अड़ी गुजार के थे, उनका भी कहना था कि अगर आप कहती तो चले जाएंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि हमारे कुछ कलीग, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन हमारे कुछ कलीग जो है वो प्रमोटेड हुए हैं, जो कल मुझे सुना जाते जाते अच्छा सा न्यूज सुनना बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद है कि हर साल ये आगे बढ़ते रहेंगे। और ऐसे तो मैं पटना में भी हूँ और टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं
मुलाकात तो होती रहेगी, इससे कोई बड़ी बात नहीं। थैंक्स, धन्यवाद। Thank you, madam. आप school is not far away from you and you are not far away from school. स्कूल आपका है और आप स्कूल के हैं और सदा ही रहेंगे। तो जब भी इधर आए तो आपका अधिकार है कि आप स्कूल में आए, अपने लोगों से मिलें, सबको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ये सोचने की बात नहीं है कि अब ये मेरा कार्यस्थल नहीं है, ये आपका कार्यस्थल हमेशा ही रहेगा, चाहे आप यहाँ रहें या ना रहें। तो आपका जो कृतित्व है, आपका जो वर्क है, that will always remain intact with you, and school is always be with you and you are with the school. Thank you. Thank you, sir. Indeed, your work, which is speaking volume, will remain intact in our heart and soul and in every brick of this building and the organization. Meanwhile, मैं आमंत्रित कर रही हूँ शक्ति प्रभा मैडम को। आप लोग सोच रहे होंगे कौन है शक्ति प्रभा मैडम? शक्ति प्रभा मैडम मृदुला मैडम की डॉक्टर-इन-लॉ है और आज वो कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि अब सासू माँ घर में है। हेलो प्रिंसिपल सर, रेस्पेक्टेड टीचर्स, थैंक यू। आप लोगों ने हमेशा एक फैमिली बन के मम्मी का साथ दिया। मैंने इनको हमेशा मम्मी ही कहा, मतलब कभी माँ या मम्मी जी ये सब निकला ही नहीं, क्योंकि मतलब ये मेरी माँ जैसी, मतलब मेरी अपनी मम्मी जैसी ही रही हमेशा। मुझे, मैं बहू हूँ लेकिन बेटी की तरह हमेशा मुझे प्यार दिया। मेरे सपनों पे हमेशा इन्होंने साथ दिया, कभी मुझे टोका नहीं, कभी टोका नहीं। कुछ गलती की उस पर समझाया मुझे कि देखो ये ऐसे मत करो, जो नहीं आया कभी मुझे जज नहीं किया कि तुम्हें ये चीज पहले से क्यों नहीं आई, ये कोई एज है करने की। हमेशा जब मैंने कहा मम्मी मुझे ये सीखना है, ये मुझे नहीं आता, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से इन्होंने मुझे सिखाया। मतलब मेरी मम्मी तो 2-3 थप्पड़ ही मार देती थी कभी कुछ सिखाने में इरिटेट होके, लेकिन कभी मम्मी मुझ पर चिल्लाई भी नहीं। इसलिए मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी मम्मी का, और साथ में आप सारे टीचर्स का भी। आप लोगों ने बहुत खुशी दी, बहुत अपनापन दिया, बहुत प्यार दिया। इसलिए मैं पूरे डीएवी स्कूल को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ और मम्मी को बहुत सारा प्यार। थैंक यू। थैंक यू शक्ति प्रभा मैम। के पास मृदुला मैडम जैसी एक्सट्रीमली टैलेंटेड सासू माँ है, जिससे आप लगातार कुछ न कुछ सीखते ही रहेंगी। और मैं अब आमंत्रित करती हूँ शशि मैम, पूनम मैडम, अनीता मैडम, निशी मैडम, रंजना मिश्रा मैडम, दास सर, आप लोग आ जाएं, हम इनका सम्मान करेंगे बुके दे करके और विद द टोकन ऑफ लव फ्रॉम डीएवी करेंगे। मोमेंटो आप हमेशा स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, मुस्कुराते रहे, आपकी गरिमा बनी रहे, आप हमेशा खुश रहे और खुशियां बिखेरती रहे। ये हम सब लोगों की कामना है। आपका स्वस्थ बना रहे और आप पूरी ऊर्जा के साथ हमेशा काम पर लगी रहे, थकान आपके चेहरे पर कभी ना आए। और ये वंदना कुछ गाना है। रेणु मैडम, रेणु मैडम, आप कहाँ पर? आप कहीं पर भी प्लीज आ जाए यहाँ पर। हमारी मृदुला मैडम के लिए कोई भी कहीं से भी हिचक नहीं होनी चाहिए। सारे लोग आ सकते हैं 1 by 1। और आज हम लोग कुछ तस्वीरें उतारेंगे क्योंकि हम लोग यादों को संजोना चाहते हैं। मृदुला मैडम काम में विश्वास रखती हैं, तस्वीरों में नहीं, लेकिन आज हम उनका कहना थोड़ा सा नहीं मानेंगे और उनकी खूब सारी फोटो डालेंगे। सारे लोग 1 by 1 आएंगे, एक एक करके आएंगे और उनके साथ हम
शब्द बोले तो अच्छा होगा इसी बीच। वंदना कुछ कहना चाह रही है। Rudrama, thanks a lot to be here and चलिए I'm trying to अपनी तरफ से बेस्ट भी इस काम को बहुत ही काफी आने वाला समय आपका काफी अच्छा हो इसके लिए हम लोग सब लोग विश कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हो और इसके लिए इस मौके पर सबसे अच्छा आपके लिए नियंत्रण करना और आगे के जीवन खुशियाँ बिताए अपने परिवार वालों के साथ। इस स्कूल की तरफ से महिला निगम को अपने लाइफ के लिए बढ़ाना है और आगे के लिए उन्हें शुभकामना और धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। और सारे लोग मुझे इकट्ठा होंगे बिल्कुल के साथ एक ग्रुप पे सारे लोग जो फोटो खिंचवा चुके हैं वो नीचे चलेंगे। आगे बहुत फोटोग्राफी होगी लेकिन आज मैंने माइक पे इमेज करूंगी। एवरीवन अरे साधना सब लोग प्लीज ध्यान दें एक मिनट के लिए इट्स अ राउंड ऑफ गॉड सब लोग प्लीज एक सेकंड कोई प्लीज कोई नहीं आई डोंट अटेंशन प्लीज। सवेरे मेरे फोन में एक कॉल आया था जिसकी वजह से मेरा फोन भी हैक हो चुका है और उसके बाद लगातार स्कूल के मेंबर्स के पास फोन आ रहा है एक्सटॉर्शन मनी के लिए। राइट, ज्योति के पास आया अभी, अविनाश सर के पास आया अभी। हाँ, सवेरे मेरे पास फोन है, यही बोल रहे हैं, नंबर हम डिस्प्ले कर देते हैं इसमें। हाँ, सबके पास फोन आ रहा है धीरे धीरे। मेरे पास फोन आया, उन्हें मेरे भाई के बारे में जानकारी नहीं है तो मुझे लगा कि मेरा भाई मेरा नंबर कहीं देता नहीं है, लेकिन क्योंकि 2-4 मिनट बात करते करते मेरा फोन डिटेल उसके पास गया और मेरे फोन में जिसका नंबर है उसको फोन कर रहा है कि हमको फलाना से बात कराइए, वो आपका नंबर की वेरिफिकेशन देगा और ट्रू कॉलर में ये आ रहा है फ्रॉड स्कैम करके। तो नंबर कई नंबर से लगातार फोन आया जा रहा है तो अपने सही नंबर को समझ के उठाएंगे। प्लीज यूज कॉल ट्रू कॉलर, अपने फोन में ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी फोन रिसीव करने के साथ आपका फोन हैक हो सकता है। नंबर सेव कर दीजिएगा आप लोग। अगर नीतू मैम प्लीज टेक द अपॉर्चुनिटी। बताइए चौथे नंबर सैलरी निर्णय
पता भी नहीं है। थैंक यू। I thank Sadhana Madam for taking the team for geography and photography and Vivek sir as well.